Hello everyone, welcome to my channel again. So in this video, I'm going to discuss exercise 2.5, 2.6 as well as 2.7 of chapter 2 of class 7th mathematics NCERT. So till now, I have created the video related to exercise 2.1 to 2.4. So if you want to check out those exercises, you may check the link in the description box I have provided over there. So let's start with 2.5 exercise now. Exercise 2.5. You may check here what this exercise is saying basically, which is greater. So in this exercise, you're going to check out the questions based on decimals basically. Okay, so decimals based questions you will find out. So how we can check which is greater basically. So after the decimal, so in the first part I'm talking about basically, after the decimal, it's written 5. And here after the decimal, it's written 0 and then 5. So you may check the digit which is just after the decimal over here. And if you check the digit which is just after the decimal, that is 5 and that is 0. So obviously 5 is greater than 0. So in this case, 0.5 is greater. So one by one digit you have to check over here. Suppose I'll take an example again. Suppose it is 5.5, 5.54. Okay, suppose this is the question. Then you will check 5, 5 same, again 5, 5 same. Now here nothing is written, that means it's 0. Right? Here it is 0, here it is 4. So 4 is greater than 0. So this would be the greater part. Okay, so this way you have to check each and every digit basically. Now let's switch to the next one, second part. So now second part of this is saying 0.7 or 0.5. So 0, 0 same, 7, 5. So 7 is greater. So this would be the answer. Then 7 or 0.7. So here you can check out 7 means 7.0. If we write a number like any number after the decimal, it's written 0, 0, 0. So it's that whole number only. Like 7 को हम 7.0 या 7.00 या 7.000 कितने भी zeros आप लगा लो, 7 ही रहेगा. Okay. Now 0.7. So if you just check out, here it is 7, here it is 0. So obviously 7 is greater, right? Now here if you check out 1, 1, 3, 4. So obviously 4 is greater, right? 2, 2, 0, 3. So 3 is greater, right? 0, 0, 8, 8. Okay, now till first digit after the decimal, it's same. Now it's nothing is written here and here it is 8. Nothing is written means I just told you it's 0 and here it is 8. That means this one is greater. Okay, I hope this is clear. How to check which one is greater in the decimals. Now let's move to the second question. Second question is saying express as rupees using decimals. So we know that in 1 rupees we are having 100 paise, right? In 1 rupee we are having 100 paise, or we can say 100 paise equals to 1 rupee. Correct? Now let's see this question. Question number 2. Express as rupees using decimals. तो हमें ये जो दिया हुआ है, we have to express this paise into rupees form by using decimals. So now just focus on this conversion basically. जब आप rupees को पैसे में convert करते हैं, I'm speaking again, जब आप rupees को पैसे में convert करते हैं तो आपको multiply करना है, ठीक है? बट जब आप पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो आपको डिवाइड करना है. अंडरस्टूड? पैसे को जब आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करना है. किससे? 100 से. ओके, नाउ लेट्स सी. So what we are going to do, we are converting paise into rupees basically. So we will divide by 100. So actually 7 divide by 100 we have to do. अब ध्यान से समझना इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, because they are saying using decimal. So यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 है, that means how many zeros are there in 100? 2 zeros, correct? So how we will write? One digit is 7, another digit we don't have, so हम अपने आप से 0 लगा देंगे, और 2 zeros थी इसलिए 2 ही digit लिखेंगे और उसके पहले decimal लग जाएगा. So this is the representation. I'm speaking again. एक और example देख लो. Suppose it is 5/10. ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उसको समझा रही हूँ मैं कैसे लिखते हैं. तो यहाँ पर देखो 10 में 1 0 है, इसका मतलब हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे. सो 5 एक डिजिट हो गई, डेसिमल लग जाएगा. सो ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू. अच्छा, अगर ये ऐसे होता
कितनी जीरोस है? 2 जीरोस, तो 2 डिजिट के बाद लगाएंगे। एक डिजिट तो दी हुई है, दूसरी नहीं पता, तो 0 और डेसिमल। ठीक है। अच्छा ये ऐसे होता अगर 3 जीरोस है, मतलब 3 डिजिट के बाद एक डिजिट, दूसरी, तीसरी, आप डेसिमल लगाएंगे। तो जितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं डिनोमिनेटर में, उतनी डिजिट के बाद आपको, मतलब उतने डिजिट के पहले आपको डेसिमल लगा देना है। आपको ऐसे राइट टू लेफ्ट मूव करना है। ओके, चलो नेक्स्ट एक और देखते हैं इसका। 50 पैसा वाला पहले करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है, चलो 50 पैसे, तो अभी मैंने बताया 50 पैसे मींस 50 अपॉन 100। पैसे को रुपीज में करते हैं तो वी हैव टू डिवाइड बाय 100। ओके, यहाँ से देखो 2 जीरोस हैं डिनोमिनेटर में, तो 2 डिजिट्स के बाद, 2 डिजिट्स ऑलरेडी है हमारे पास न्यूमरेटर में, सो विल राइट दीज 2 डिजिट्स और इसके पहले डेसिमल। ओके, तो जब दो डिजिट दी हुई है तो विल जस्ट पुट डेसिमल बिफोर इट। अगर एक है तो हमें अपने आप से 0 ऐड करना पड़ेगा उसके आगे। ओके, चलो ऐसे ये अगर देखें हम 235 पैसे, तो 235 पैसे मीन्स 235 अपॉन 100। तो 2 जीरोस दैट मीन्स 2 डिजिट्स के बाद, तो एक डिजिट 5, एक डिजिट 3 और अब डेसिमल लग जाएगा और ये एज इट इज। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3 डिजिट्स गिवन है और हमें डिनोमिनेटर में 100 है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। राइट, मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखाती हूँ। देखो 100 टू जा 200, राइट, 5 बचा, 3 बचा। अब देखो ये डिवाइड नहीं हो पा रहा ना, तो 2 के बाद ही डेसिमल लगेगा। आपको बस तरीका क्या ध्यान रहना है, जब भी हमें डेसिमल लगाना है तो हम पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे, आगे से ऐसे नहीं लिख देना है इसको, रॉन्ग। ओके, क्यों? पीछे से ही लिखना है, जितनी जीरोस हैं उतनी डिजिट पीछे से काउंट करेंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे। अंडरस्टूड? चलो अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं जो हमने स्किप किया था पहले। आई एम इरेजिंग दिस। ओके, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में व्हाट इज गिवन हियर, 7 रुपीज 7 पैसे। सो 7 रुपीज तो 7 रुपीज ही रह जाएगा। ठीक है, 7 पैसे को, वाई 7 रुपीज वी आर लिविंग लाइक दिस, बिकॉज रुपीज में ही तो एक्सप्रेस करना है और दैट इज ऑलरेडी गिवन इन रुपीज। तो हम पैसे को पहले रुपीज में कर लेते हैं। सो 7 पैसे को वी आर कन्वर्टिंग इन रुपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से बताओ कितना आएगा, 7 अपॉन 100 एंड अभी किया था 0.07 रुपीज। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब ये बन के आ गया एक्चुअल में 7 रुपी प्लस 0.07 रुपी। एक्चुअल में दिस इज द क्वेश्चन नाउ। 7 रुपीज तो था ही था और 7 पैसे को हमने क्या लिख दिया, 0.07 रुपी। अब दोनों को आप ऐड करोगे तो एडिशन कैसे करते हैं डेसिमल में, जस्ट फोकस हियर, हाउ वी डू एडिशन इन डेसिमल। दिस इज 7 रुपी। आई जस्ट टोल्ड यू 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7.00, कितनी भी जीरो लगा सकते हैं उसके पीछे, वो 7 ही रहेगा। और 0.07, तब जब भी आप ऐड करते हैं डेसिमल में, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो 0.07। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 0 + 7 = 7, 0 + 0 = 0, डेसिमल का डेसिमल 7 + 0 = 7। सो दिस वुड बी 7.07। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। दिस इज इन रुपीज बेसिकली। ओके, सो वी विल राइट लाइक रुपीज 7.07। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट नाउ। 77 रुपीज को वी विल नॉट टच, वी विल सी 77 पैसे। जल्दी से बताओ 77 पैसे को रुपीज में कैसे लिखेंगे, क्विकली। यस, 77 अपॉन 100, और 77 अपॉन 100 मीन्स 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट के बाद एक डिजिट, 2 डिजिट, 7 7, डेसिमल लग जाएगा। सो 0.77 रुपीज बेसिकली। तो इसको कैसे करेंगे, 77 रुपीज प्लस 0.77 रुपीज, यहाँ पर लिख लेना रुपीज। नाउ इफ यू ऐड इट, तो ऐड कैसे करेंगे इसको, 77 और 0.77, तो यहाँ डेसिमल है ही नहीं इस नंबर में, तो विल पुट डेसिमल बाय आवर ओन, डेसिमल 0 लगा देंगे। अब 0 पॉइंट, तो देखो 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट मत करना, कई बार गलती ये होती है, ऐसे लिखते हैं बच्चे, इट्स रॉन्ग। इस तरह से नहीं लिखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। तो 0 डेसिमल, जहां से वो नंबर स्टार्ट होगा डेसिमल के पास ही लिखना है, जहां डेसिमल है वहीं, डेसिमल के बाद फिर जितने भी नंबर हैं वो उतने लिखने हैं, डेसिमल के पहले जितने भी हैं उतने लिखने हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो विल पुट 0 बाय आवर ओन। इसको ऐड करेंगे तो इट वुड बी 7777 dot. So the answer of this would be rupees 77.77.
7। आई होप ये समझ आ गया होगा कि हमें डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे ऐड करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। अब आपको करना क्या है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में रिप्रेजेंट करना है और किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमें पता है दैट वी नो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, right? We know it, 1 meter is 100 centimeter, 1 kilometer is 1000 मीटर। अच्छा, अब हमें सेंटीमीटर को मीटर में करना है, मतलब हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है। सी, वी आर नॉट कन्वर्टिंग मीटर इनटू सेंटीमीटर, वी आर कन्वर्टिंग सेंटीमीटर इनटू मीटर। तो जब हम उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वी डिवाइड, so दैट मीन्स हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हमें 5 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी विल राइट दिस representation, 1 meter equals to 100 centimeter, then 5 centimeter equals to 5 by 100 meter. Now 5 by 100 is how much? Quickly tell the decimal part. Yes, it's 0.05 meter. Okay, so this is the representation in meter. Now the same 5 centimeter we will represent in kilometer. Okay, so kilometer ke liye we will write this representation now. And after that what we will write, 1 kilometer equals to 1000 meter. अब यहाँ ध्यान से देखना, 1 kilometer equals to 1000 meter. So 1 kilometer equals to 1000 और मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से करते हैं, राइट? सो 100 सेंटीमीटर। इसमें कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको एक चार्ट बताती हूँ, उस चार्ट को आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होगी। हम वो चार्ट देख लेते हैं, दैट वुड मेक द क्वेश्चंस वेरी इजियर कन्वर्जन के। यहाँ ध्यान से देखेंगे, किलो, हेक्टो, डेका पहले समझना है फिर लिखेंगे। इट कैन बी द टर्म ऑफ किलोमीटर और किलोग्राम और किलोलीटर, ठीक है, कोई से भी यूनिट आती है। नाउ डेसी, सेंटी एंड मिली, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, मींस लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं ऐसे उल्टी डायरेक्शन में तो हमें डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, तो सपोज हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर में, तो किलोमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, तो कितने स्टेप्स हमने लिए, 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप लिए, इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बात समझ आई? स्टेप्स ऐसे चेक करना। सो 3 स्टेप्स लिए, मतलब 3 zeros वाला मतलब 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि हम इस तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, अच्छा अब एक और कुछ देख लेते हैं। किलोमीटर को मीटर में नहीं करना, अब हमें कुछ और देखना है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना है, ठीक है। सो किलोमीटर इज हेयर, सेंटीमीटर इज हेयर, दिस इज किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर ओनली, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सिमिलरली अगर ग्राम में यूनिट है तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, एंड सिमिलरली फॉर लीटर। ठीक है, तो अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना है। सो किलो इज हेयर, सेंटी इज हेयर। सो कितने स्टेप्स हो गए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5 steps. 5 steps we are taking in this direction. So multiply by 5 zeros वाला मीन्स किससे मल्टीप्लाई किया, 1 लाख से। ओके, तो इस तरह से आपको गेस करना है, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना है, मतलब हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है, सेंटीमीटर टू किलोमीटर। 5 स्टेप है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो इस केस में हम डिवाइड करेंगे 1 लाख से। बात समझ आई? ओके, सो इस 5 सेंटीमीटर को वी विल डिवाइड बाय 1 लाख। अब 5 जीरो है तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 1 डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नाउ डेसिमल। सो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, समझे? सो दिस इज इन किलोमीटर्स बेसिकली। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सेकंड पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट इरेजिंग दिस चार्ट। Okay, let's see. This is later.
नाउ सेकंड पार्ट इज सेइंग एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है। सो वेयर इज मिलीमीटर, हेयर, वेयर इज सेंटीमीटर, हेयर। तो मतलब हमें मिली को सेंटी में करना है, इस तरफ जा रहे हैं, मिली टू सेंटी, इस तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड, राइट। कितने स्टेप लिया, एक स्टेप, मतलब 10 से। तो 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए वी विल डिवाइड बाय 10। ओके, समझ आई बात। सो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें डिवाइड करना है। सो जब डिवाइड का फॉर्म होता है तो इस तरह से लिखते हैं, और अगर सेंटी को मिली में करना होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि उस तरफ हम मल्टीप्लाई करते। ओके, नाउ 35 मिलीमीटर इक्वल्स टू 35/10, 35 को 10 से डिवाइड कर देंगे, एंड दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। वाई 3.5, एक ही जीरो है तो पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। नाउ 35 सेंटीमीटर को, सॉरी 35 मिलीमीटर को अब हमें मीटर में करना है, मिलीमीटर टू मीटर। सो मिलीमीटर इज हेयर, मीटर इज हेयर। कितने स्टेप्स लिए, 1 2 3। अगेन हम इस डायरेक्शन में स्टेप्स ले रहे हैं और 3 स्टेप्स लिए, दैट मीन्स वी विल डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू, मिलीमीटर टू मीटर जा रहे हैं, मिलीमीटर टू मीटर जा रहे हैं, करना क्या है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, कितने से, 1000 से, 1000 से। तो डिवाइड के फॉर्म 1 अपॉन करके लिखना ना, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। सो 35 मिलीमीटर, मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। सो इट वुड बी 35 मिलीमीटर इक्वल्स टू 35 अपॉन 1000 मीटर, राइट। अब 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद एक डिजिट, दूसरी, तीसरी। सो दिस वुड बी द आंसर। ओके, नाउ तीसरा पार्ट देख लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, okay, let me just quickly erase this one. Yeah, okay, next is millimeter to kilometer. ठीक है, तो 3 conversions they are asking, basically 2 are already done. Now millimeter to kilometer, फिर से हमें इसी डायरेक्शन में मूव करना है। देखो, मिली इज हेयर, किलो इज हेयर, कितना मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने इस डायरेक्शन में मूव किया। सो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू, डिवाइड करेंगे, इस तरफ मूव कर रहे हैं तो 1 अपॉन, कितने से, कितने स्टेप लिए, 6। सो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और किस में कन्वर्ट हो रहा है ये, किलोमीटर में। ठीक है, समझ आया कैसे लिखते हैं। नाउ व्हाट वी आर कन्वर्टिंग, 35 मिलीमीटर। सो 35, आई एम राइटिंग हियर, 35 मिलीमीटर इक्वल्स टू 35 अपॉन किलोमीटर। 6 जीरोस हैं तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1 डिजिट, 2 डिजिट, दो तो दी हुई है, 3 4 5 6, नाउ डेसिमल। सो दिस वुड बी द आंसर। आई होप समझ आया होगा हाउ टू डू दिस पार्ट। ठीक है, स्टिल नहीं आया तो यू मे राइट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। अब आपको जो भी दिया है उसको किलोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। सो अभी मैंने जो चार्ट बताया था उसको मैंने दोबारा से लिख लिया है, वही चार्ट फॉलो करेंगे। किसको कन्वर्ट करना है, ग्राम को, किसमें, किलोग्राम में। सो ग्राम कहाँ है, हेयर इट इज, किलोग्राम कहाँ है, हेयर इट इज। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन अगेन, है ना, तो डिवाइड ही करेंगे, किसने से, 1 2 3 मीन्स 1000 से। सो हाउ यू विल राइट, ग्राम को किलोग्राम में कर रहे हैं, सो 1 ग्राम इक्वल्स टू, डिवाइड करना है, दैट्स व्हाई 1 अपॉन, किससे, कितने स्टेप्स, 3 स्टेप्स, 1/1000 किलोग्राम। now किसको करना है, 200 ग्राम को। सो 200 ग्राम इक्वल्स टू 200 अपॉन 1000, क्योंकि 200 को ही तो डिवाइड करेंगे। now 3 जीरोस है नीचे तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट, दो डिजिट, 3 डिजिट, ऑलरेडी 3 डिजिट्स आर गिवन, so we'll just put decimal here. so this is the answer of the first part. आई होप समझ आया होगा। अब मैं एक और पार्ट यहाँ पर कर देती हूँ आपके लिए, थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट सिमिलर है जो आपने अभी सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था ना, एडिशन की थी जो। चलो फिर भी देख लेते हैं इसको करना क्या है। 4 किलोग्राम 8 ग्राम, करना किस में है कन्वर्ट, किलोग्राम में। सो किलोग्राम में करना है तो किलोग्राम को तो टच करना ही नहीं है, इस पार्ट को टच नहीं करना, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी इन किलोग्राम। हम इस पार्ट को कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो अभी जैसे मैंने बताया सेम वैसे लिखेंगे,
1 gram equals to 1/1000 kilogram. Then after that 8 gram equals to 8/1000 kilogram. एंड 3 जीरोस हैं तो 3 डिजिट के बाद किलोग्राम. तो ये हमारा आंसर आ गया 8 ग्राम का 0.008 किलोग्राम. अब हमें 4 किलोग्राम 8 ग्राम पूरे को किलोग्राम में लिखना है. तो हाउ वी विल डू, पहले हम ये क्वेश्चन लिखेंगे पूरा इक्वल्स टू 4 प्लस 0.008, वो एज इट इज रह जाता है और वो जो कन्वर्ट करके आता है उन दोनों को ऐड कर देते हैं. नाउ हाउ यू विल डू एडिशन हेयर, मैंने अभी बताया था 4 और 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है तो 4 कम पॉइंट 4.00 ऐसे करके लिख सकते हैं, राइट. अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, पॉइंट के इस तरफ क्या है 008, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे. पॉइंट के इधर क्या है 0. अब आप इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 4.008. सो द आंसर ऑफ इट वुड बी 4.008 किलोग्राम. ओके, अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट आप खुद से कर लेंगे बाय यूजिंग दिस कन्वर्जन चार्ट. बेसिकली मिलीग्राम को किलोग्राम में करना है तो मैं आपको जस्ट स्टेप्स बता देती हूँ. मिली इज हेयर, किलो इज हेयर. तो आपको जो पहले आया था 6 स्टेप्स आएंगे इसमें. देखो 1 2 3 4 5 6. तो मिली को किलो में करना है, मिली ग्राम किलोग्राम. सो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी बता देती हूँ. मिली को वी रिप्रेजेंट विद m, सेंटी को c, मतलब इसके पीछे cg है अगर तो सेंटीग्राम, cm है तो सेंटीमीटर, cl है तो सेंटीलीटर. ठीक है. d से डेसी को, ये तो है ही मीटर ग्राम लीटर. डेका को da से, मींस अगर DAM है तो डेकामीटर और DM है तो डेसीमीटर. ठीक है. अच्छा, हेक्टो को H से और किलो को K से. तो ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन की. इनके पीछे मतलब K के पीछे M आ गया तो किलोमीटर हो गया, K के पीछे G आ गया तो किलोग्राम हो गया, K के पीछे L आ गया तो किलोलीटर हो गया. ठीक है, बात समझे मेरी. ऐसे H के पीछे M आ गया तो दिस इज हेक्टो, दिस इज मीटर, तो हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, हेक्टोलीटर, इस तरह से. आई होप समझ आ गया होगा. चलो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे. So what fifth question is saying basically, write the following decimal numbers in the expanded form. तो expanded form का क्वेश्चन आ गया अब हमारा. ठीक है, तो expanded form में करना क्या है हमें, expanded form decimals की कैसे लिखते हैं. So decimal से पहले का जो है ये पार्ट, डेसिमल से जो पहले के पार्ट्स है दिस वन, इनका तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म वैसे ही लिखना है जैसे आप नॉर्मल नंबर्स का लिखते आए हो. जैसे सपोज 20.03 क्वेश्चन था तो डेसिमल 03 को भूल जाओ, सिर्फ 20 है आपके पास, ऐसा सोचो. सो हाउ यू विल राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 20 प्लस 0, करेक्ट. अब डेसिमल के बाद कैसे लिखते हैं, डेसिमल के बाद हम अपॉन में लिखते हैं. 0/10, 3/100, और कुछ होता सपोज इसके पीछे 4 है तो 4/1000. ठीक है, 10, 100, 1000 ऐसे डेसिमल में, डेसिमल के बाद जो है डिनोमिनेटर में ऐड हो जाता है. क्यों होता है, बिकॉज जो इसका प्लेस वैल्यू चार्ट होता है दिस इज लाइक दैट. मैं अभी आपको दिखाती हूँ. जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है आफ्टर डेसिमल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली डेसिमल के बाद वाला. आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के पहले तो वही है 1, 10, 100, 1000, 10,000 जो आपने अब तक पढ़ा है. डेसिमल के बाद क्या होता है, टेंस. टेंस, टेंस मीन्स 1/10. hundreds, hundreds means 1/100. then thousands, thousands means 1/1000. ठीक है, THS के साथ आ जाते हैं, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो इनका मतलब 1/. अच्छा, तो इसलिए हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट को 1/, करके लिखेंगे, मतलब जो भी डिजिट है अपॉन. नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड पार्ट. 2.03, तो 2.03 है तो ये हट जाएगा, राइट. ये आंसर आ जाएगा हमारे इस केस में 2 प्लस 0.10 प्लस 3/100. ठीक है, तो ये आंसर है हमारा सेकंड पार्ट का. दिस वन इरेज कर दिया मैंने. 2 को तो 2 ही लिखेंगे, डेसिमल के बाद वैसे ही लिखेंगे. ओके, नाउ थर्ड पार्ट में 200 है बच्चा, इट्स 200 नाउ. सो 200 प्लस 00 प्लस 0, ये तो हो गई 200 की रिप्रेजेंटेशन, और 03 की सेम ही रहेगी. ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट देख लेते हैं जल्दी से.
What fourth part is saying? 2.034। तो डेसिमल के पहले तो सिर्फ 2 है, तो 2 का रिप्रेजेंटेशन वुड बी 2 एक्सपेंडेड फॉर्म। अब डेसिमल के बाद 0, 0/10, देन 3, 3/100, देन 4, 4/1000। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है, डेसिमल के पहले वाले का एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे अभी तक करते आए हो वैसे ही करना है, और डेसिमल के बाद में आपको टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड शुरू हो जाता है, तो जो डिजिट है उसको अपॉन करके लिखना है, डिजिट अपॉन 10, देन 100, देन 1000, उसके बाद 10,000, इस तरह से। ठीक है, चलो 6 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन इज सेइंग राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। प्लेस वैल्यू आपको बतानी है इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो प्लेस वैल्यू के लिए वही आपको वंस, टेंस, हंड्रेड या टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड ये चेक करना पड़ेगा। तो इस फर्स्ट पार्ट में 2 कहाँ है? डेसिमल के पहले है। तो डेसिमल के पहले मैंने बताया नॉर्मल जो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट चलता है, जैसे कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, सेम चलेगा जो अभी तक हम यूज करते आ रहे थे। ओके, तो 2 कौन से प्लेस पर है? वंस पे, करेक्ट। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या हो गई? 2 वंस। नाउ इसमें यहाँ पर है, फिर से डेसिमल के पहले है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? विल राइट लाइक दिस, 2 1। तो 2 कौन से प्लेस पर है? टेंस के, तो द प्लेस वैल्यू वुड बी 2 टेंस। नाउ हियर इट इज आफ्टर डेसिमल, यहाँ ध्यान देना, तो इसको 2 टेंस नहीं लिखना। डेसिमल के बाद क्या आता है? अभी मैंने बताया, डेसिमल के बाद आता है टेंस। ठीक है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 आएगा इस केस में। ओके, here in this third part basically 2 would come here, it is like this। तो ये hundreds है। ओके, तो 2 कहाँ आ रहा है? यहाँ पर। सो आंसर ऑफ दिस इज 2 टेंस। और अगर मतलब डिजिट में लिखने बोले तो 2 टेंस मतलब 2/10, ऐसे भी लिख सकते हो और 2 टेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। 9.42 में 2 का प्लेस वैल्यू डेसिमल के बाद है, तो ध्यान देना डेसिमल के बाद कैसे लिखेंगे हम। दिस इज वंस, दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स, बिकॉज डेसिमल के बाद है। तो क्या हो गई प्लेस वैल्यू? 200। डेसिमल के बाद इसको ध्यान देना, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2/100। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट का जल्दी से खुद से बताएंगे आप क्विकली। yes, it is 2000s, tens, this is tens, hundreds, thousands, 2000s। बस आपको ये ध्यान रखना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, डेसिमल के पहले कुछ कंफ्यूज नहीं होना, अभी तक जो पढ़ते आए हो वैसे ही है, वही रहेगा। डेसिमल के बाद टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स मतलब अपॉन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 2000 मीन्स 2/1000, ये इसका प्लेस वैल्यू होगा, हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी मैंने बताया ना कैसे डिवाइड करना है, राइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट सेवंथ क्वेश्चन इज सेइंग दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। दिनेश जो है ये प्लेस ए से प्लेस बी गया, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, पहले ए से बी गया फिर बी से सी गया। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, तो ए और बी का जो डिस्टेंस है दैट इज 7.5 किलोमीटर, एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, तो बी और सी का जो डिस्टेंस है दैट इज 12.7 किलोमीटर। आयुब वेंट फ्रॉम, अब दूसरे बंदे की बात हो गई, ये हुई थी दिनेश की बात। नाउ अनदर पर्सन इज कमिंग, आयुब। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। आयुब जो है आई एम रिप्रेजेंटिंग इन रेड कलर, आयुब ए से डी गया, इस आयुब को आई एम रिप्रेजेंटिंग इन रेड कलर, ए टू डी एंड देन फ्रॉम डी टू सी। आयुब जो है ऐसे गया, सो डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, मतलब ए डी के बीच का डिस्टेंस इज 9.3 किलोमीटर, एंड सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी, तो ये डी वाला डिस्टेंस जो है दैट इज 11.8 किलोमीटर। हु ट्रेवल्ड मोर, किसने ज्यादा ट्रेवल किया? देख लेते हैं दिनेश ने कितना ट्रेवल किया। दिनेश, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू विल राइट, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू 7.5 किलोमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इक्वल्स टू 12.7 किलोमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी इक्वल्स टू 9.3 किलोमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम डी टू सी या सी टू डी एनीथिंग 11.8 किलोमीटर। पहले चारों डिस्टेंस लिख देंगे, उसके बाद
दिनेश ट्रेवल्ड इक्वल्स टू कितना करा 7.5 प्लस 12.7. नाउ हाउ यू विल ऐड इट, अभी मैंने समझाया था डेसिमल के नीचे डेसिमल 7.5. अच्छा, इसको इस तरह से नहीं लिखना है, 0 नंबर मिल जाएंगे, ध्यान देना, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो 12 पॉइंट यहीं लगाना है. 12 कैसे लिखेंगे, 1 ऐसे 12.7. अब इसको ऐड करो, 7 + 5 12, कैरी फॉरवर्ड, 7 + 1 8, 8 + 2 10, carry forward, 1 + 1 2. So answer of this is 20.2 kilometers. So this is the distance traveled by Dinesh. अब आयुब का देख लेते हैं. Now आयुब traveled equals to, this was Dinesh, अब आयुब का, आयुब ने कितना ट्रेवल किया 9.3 प्लस 11.8 ऐड करेंगे, 9.3 पॉइंट के नीचे पॉइंट 11.8, 8 + 3 11, डेसिमल आ जाएगा, 9 + 1 10 + 1 11, 1 + 1 2. सो दिस इज 21.1 किलोमीटर. अब आप क्विकली बता ही सकते हैं हु ट्रेवल्ड मोर, राइट, दिस इज 20, दिस इज 21. सो आयुब ने, तो आयुब ट्रेवल्ड मोर बाय हाउ मच, मैंने एक बार पहले बताया था आपको, जब भी हाउ मच वगैरह निकालना होता है कि कितना ज्यादा ट्रेवल किया कितना कम किया करके, तो उसके हम सबट्रैक्शन करते हैं, राइट. सो हु ट्रेवल्ड मोर, आयुब ट्रेवल्ड मोर बाय how much, we'll subtract both the distances. So Ayub, who की जगह लिखेंगे Ayub traveled more by, now subtract 21.1 minus 20.2. subtract कैसे करेंगे, 21.1 डेसिमल के नीचे डेसिमल, this is 20 decimal 2. now 1 minus 2 not possible, तो हम इधर से borrow ले लेंगे, we'll take borrow from here, ठीक है. so borrow लेंगे हम, 11 हो जाएगा, this would become 0. okay, 11 minus 2 is 9. आगे बताओ क्या आएगा आंसर जल्दी से. yes, this would become 0 minus 0 0, 2 minus 2 0, और बीच में देखो यहाँ डेसिमल है तो यहीं लगाएंगे. it is 0.9 kilometer basically. so the answer is 0.9 kilometer. Ayub traveled more by 0.9 kilometer. आप इसको मीटर्स में भी करके लिख सकते हो, मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 1000 से, ठीक है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8th क्वेश्चन. Let's see question number 8 now. So question number 8 is saying Shama bought 5 kg 300 gram apples. Apples इसने खरीदे and 3 kg 250 gram mangoes. Mangoes इसने खरीदी किसने, Shama ने. So what you will write, apples bought by Shama. Repeating again, apples bought by Shama equals to 5 kg 300 grams. I'm writing in short, apples bought by Shama. Okay, bought by Shama लिख लेना, equals to 5 kg 300 grams. Then Sarla bought these many oranges and these many bananas. Who bought more fruits? Now mangoes bought by Shama equals to, this is Shama, equals to कितना 3 kg 250 grams. okay, so now fruits bought by, so Shama is like Shama has bought two types of fruits basically, apples and mangoes. So fruits bought by Shama equals to, what we will do, we will add them. So 5 kg 300 gram plus 3 kg 250 gram. So we have to add. How we will add? See, 5 kg 300 gram and 3 kg 250 gram. Okay, kg को kg के साथ, ग्राम को ग्राम के साथ. Now 0 plus 5 5, 3 plus 2 5 gram, 5 plus 3 8. So 8 kg 550 gram. इतना जो है Shama ने bought किया. Now we'll talk about Sarla. So what you will write now, I'll just speak, I'll not write.
oranges bought by Sarla equals to itna. Then again bananas bought by Sarla equals to this much. Repeating again, oranges bought by Sarla equals to itna. Bananas bought by Sarla equals to itna. Then fruits bought by Sarla कितना हो गया 4 kg 800 gram plus 4 kg 150 gram. So when you will add it, you will get the answer as 8 kg 950 gram. So श्यामा ने 8 kg 550 gram खरीदा और सरला ने 8 kg 950 gram खरीदा. तो 8 kg तो दोनों का सेम है, but you will talk about the gram quantity ना. So सरला ने ग्राम की क्वांटिटी ज्यादा खरीदी. So who bought more fruits? सरला bought more fruits. तो who की जगह आ जाएगा सरला bought more fruits. So this is the answer of question number 8. Now let's see question number 9. अगर इसमें पूछा होता कितना ज्यादा तो आप दोनों को माइनस कर देते. ठीक है, चलो let's move to the last question of this exercise. Last question is how much less is 28 किलोमीटर than 42.6 किलोमीटर. मतलब क्या है 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है. एक एग्जांपल देती हूँ. 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर से कितना कम है. कितना कम है 3 किलोमीटर. बट निकाला कैसे 5 माइनस 2 करके. तो आपको 42.6 माइनस 28 करना है. कितना कम है के लिए माइनस करेंगे. सो हाउ यू विल राइट 42.6 किलोमीटर माइनस 28 किलोमीटर. तो 28 को ऐसे मत लिख देना. मैंने बार बार बताया है डेसिमल्स में जब आप करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है. और 28 को हम डेसिमल फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं 28.0. ओके, तो डेसिमल नहीं दिया तो आप अपने आप से डेसिमल लगा देंगे उसमें. ओके, नाउ सबट्रैक्टेड 6 माइनस 0 इज 6. देन डेसिमल 2 में से 8 नहीं जा सकता तो 2 वुड बिकम 12. दिस वुड बिकम 3. तो 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1. सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस 9th क्वेश्चन बेसिकली. आई होप समझ आ गई होगी ये वाली एक्सरसाइज. स्टिल इफ यू आर हैविंग डाउट्स प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Next exercise, that is exercise number 2.6. First question is saying find. तो आपको मल्टीप्लाई करना है. तो लिसन टू मी प्रॉपरली नाउ. जब भी आपको डेसिमल नंबर किसी भी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो कैसे करेंगे हम उसको. डेसिमल को भूल जाना है. थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाना है. तो सपोज करो ये डेसिमल भूल गए तो क्या बचा 0 2 इसमें मतलब 2. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हमें पता है कितना होता है 12. राइट, तो डेसिमल को भूल जाना है मल्टीप्लाई करते टाइम. अब ये डेसिमल जो है वो पीछे से देखो कितनी डिजिट के बाद है. पीछे से एक डिजिट है उसके बाद डेसिमल है. तो यहाँ पर भी पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा. 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.6 डेसिमल भूल जाओ. ठीक है, तो 46 है एक तरह से. तो 46 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 48, 8 4 32, 32 प्लस 4 इज 36, 368 आया. ठीक है, अब हमें डेसिमल लगाना है जो हम भूल गए थे पहले. कितने डिजिट है डेसिमल के बाद एक डिजिट. तो यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे. तो ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, एक और कर लेते हैं. चलो 5th पार्ट में आपको बताती हूँ. 5th पार्ट में देखो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7. मैंने बोला डेसिमल भूल जाओ. सॉरी डेसिमल भूल गए तो 0.05 बन गया 5 ओनली. क्योंकि जब डेसिमल भूल गए तो 005 है ना, और 005 5 ही होता है. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया 35. राइट, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारा आ गया 35. अब यहाँ पर डेसिमल कैसे लगाएंगे. डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2. तो 2 डिजिट पीछे से काउंट करो 1 2 और डेसिमल लगा देना है. तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 0.35. समझ आया. डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतनी ही डिजिट यहाँ पर आंसर में भी डेसिमल के बाद होंगी. ओके, इस तरह से बाकी भी करने हैं. इसमें जैसे 7th में
डेसिमल भूल जाना, बच जाएगा 86। सो 86 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 86 और जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 172। तो 172 जब आया, अब पीछे कितनी डिजिट है? 2, पीछे से 2 डिजिट काउंट करेंगे और डेसिमल लगा देंगे। बस यही करना है, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाना है, बाद में उस डेसिमल को लगा देंगे जितनी भी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ होता है, राइट? तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे। सबसे पहले तो यू विल राइट लेंथ of rectangle equals to 5.7 centimeter. Then you will write breadth of rectangle equals to 3 centimeter. Then you will write area of rectangle equals to length multiplied by breadth. Then length is 5.7, breadth is 3. अभी मैंने मल्टीप्लाई करना बताया, 57 कंसिडर करेंगे, 57 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 7 से 21, 3 5 से 15 प्लस 2 17। अब कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद? एक डिजिट, तो एक डिजिट के जस्ट पहले डेसिमल लग जाएगा, तो 17.1। पीछे से डेसिमल लगाना हमेशा, आगे से नहीं लगाना, पीछे से लगाना, इधर साइड से। ठीक है, ओके। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। So let's move to the next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड, फिर से मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो अब यहाँ पर आप देखोगे मल्टीप्लाई किससे है, या तो 10 से या 100 से या 1000 से, ऐसे नंबर से आपका मल्टीप्लीकेशन है। तो जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को, ध्यान से सुनना, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट ही कंसिडर कर रही हूँ, किसी भी डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाता है पीछे की तरफ। डेसिमल पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कितना? जितनी भी नंबर ऑफ जीरोस हैं, कितनी है? एक जीरो, तो एक बार पीछे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 13 के पीछे डेसिमल लगाने का मतलब क्या है? 13.0, और वो क्या होता है? 13 ही होता है। तो किसी भी नंबर के एंडिंग में अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो नंबर ही एज इट इज रह जाता है, उसको 13.0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 13 ही है। ओके, तो मैं दोबारा बता रही हूँ, जब भी आप 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेसिमल पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। कितना? जितनी नंबर ऑफ जीरोस है उतना। तो यहाँ पर 13 आ गया। नाउ लेट्स सी द अनदर पार्ट। लेट्स सी द फिफ्थ पार्ट नाउ। 31.1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वी विल शिफ्ट द डेसिमल पीछे की तरफ, कितना? जितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो हियर वी कैन सी नंबर ऑफ जीरोस हैं 2, तो मतलब डेसिमल जो है 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो 31 तो एज इट इज रहेगा, पीछे शिफ्ट करना है तो पीछे एक डिजिट तो ऑलरेडी लिखी हुई है, एक और डिजिट चाहिए, तो वो डिजिट हमें नहीं पता, इसका मतलब वो 0। ठीक है, अब इसके बाद डेसिमल चाहे लगाओ चाहे नहीं लगाओ, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लगाते हैं तो ये रहेगा और ये जो है 3110 के ही इक्वल है। एक तो तरीका ये है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो व्हाट यू कैन डू, अनदर वे इज दिस, सीधा अनदर वे ऑफ डूइंग नाउ। वी विल रिमूव दिस डेसिमल, इसको रिमूव करेंगे तो 1, और जितनी भी इसके पीछे डिजिट है तो वो नंबर ऑफ जीरोस आ जाती हैं। एक डिजिट थी तो एक जीरो आ गई अपॉन में। अब ये नंबर क्या बन गया हमारा? दिस इज 311 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 और 100 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 311 मल्टीप्लाइड बाय 10 और दिस इज दिस ओनली। तब दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगता है वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक और इसका देख लेते हैं। तो आई विल सॉल्व द नेक्स्ट वन विद लाइक बोथ द मेथड्स। तो आपको जो भी इजी लगे यू कैन फॉलो दैट। तो आई एम ऑप्टिंग दिस, ठीक है। 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो जैसे पहले जो तरीका बताया था उसमें, उसके अकॉर्डिंग 3 जीरोस हैं तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 डिजिट, 1, 2, तीसरी नहीं है तो तीसरी 0 मान लेते हैं, तो 030, और 030 जो है 30 ही होता है, तो इसका आंसर हो गया 30। एक तो तरीका ये है। दूसरा वे है हमारा 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000, डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 डिजिट्स हैं 2 डेसिमल के बाद, सो वी विल पुट 2 zeros ओवर हियर। नाउ वी विल कैंसिल आउट द zeros, 1 0, another 0. Now what is remaining? 3 multiplied by 10 and that is 30. So you may opt any method, this one or this one.
जो भी आपको इजी लगे। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 liter of petrol. Means एक टू व्हीलर है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करता है। How much distance will it cover in 10 liters of petrol? 1 लीटर में इतना कर रहा है तो 10 लीटर में कितना करेगा। जब भी आपको 1 के लिए गिवन है, देखो 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर कवर कर रहा है, ये गिवन है आपको 1 लीटर का। आपको ज्यादा का निकालना है कि 10 लीटर में कितना करेगा। तो जब आपको ज्यादा का निकालना होता है यू डू मल्टीप्लीकेशन, दिस इज यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1 लीटर पेट्रोल में आप 2 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं, तो 3 लीटर पेट्रोल में कितना करेंगे। आई एम सेइंग 1 लीटर में अगर आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो 3 लीटर में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो 6 किलोमीटर। कैसे किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो मल्टीप्लीकेशन करके करना है। ओके, so now how we are going to write it, basically the way of writing is distance covered by, covers नहीं लिखना, covered, distance covered by two wheeler in 1 liter of petrol. I'm repeating again, distance covered by two wheeler in 1 liter of petrol equals to 55.3 kilometer. Then another line would remain same, distance covered by two wheeler in 10 liters of petrol. 1 liter of petrol की जगह आ जाएगा 10 liters of petrol equals to 55.3 multiplied by 10। और अभी मैंने बताया मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, डेसिमल रिमूव कर लो। डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 आ जाएगा नीचे, बिकॉज 1 डिजिट है डेसिमल के बाद। 10 से 10 कैंसिल, बच गया 553। तो 553 kilometer would be the answer of this question. Now let's move to the last question of this exercise. Find करना है, just you have to do multiplication. अभी थोड़ी देर पहले I just told you कि multiplication में just forward the decimal और आंसर आने के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। Now इसमें चेंज क्या है, here only one digit was of, like one number was of decimal, another was the whole number, like that first और थर्ड क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या चेंज है, दोनों ही डेसिमल के नंबर्स हैं। तो जब दोनों डेसिमल के नंबर्स होंगे तो कैसे करना है, दोनों का डेसिमल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो द नंबर इज, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट पार्ट, नाउ द नंबर इज 25 एंड हियर द नंबर वुड बी 3। दोनों का डेसिमल भूल जाना है। नाउ मल्टीप्लाई इट, 25 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 75 हियर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज 75 आ गया। अब हमने दोनों का डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूल गए थे, अब उसको पुट करना है। कैसे, पीछे के डिजिट देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी है, इसमें है 1 डिजिट और इसमें भी है 1 डिजिट, तो टोटल हो गई 2 डिजिट्स। तो इधर से पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, 1 2 और ये हमारा हो गया इसका आंसर। दोबारा देख लो, एक क्वेश्चन और कराती हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली। सो लेट्स सी वन मोर है ओवर हियर। So next part, second part I'm talking about. So decimal भूल जाना है, this would be 1 and this would be 517। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 517, क्योंकि नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। ना अब हम डेसिमल भूले थे, कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, मतलब 2 डिजिट। तो पीछे से 2 डिजिट देखेंगे, यहाँ पर 1 2, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। 51.7 नहीं करना, पीछे से करना है, ठीक है। So this would be the answer. एक और देख लेते हैं इसका, let's see this one, ठीक है। So in this question forward the decimal, so the number is 10101 और another number would become 1 only। 0.01 का जब आप डेसिमल भूल जाओगे तो 001 और ये 1 ही होता है। तो जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आ जाएगा। अब डेसिमल लगाएंगे, कितनी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, यहाँ पर है 1 2 और यहाँ पर है 1 2, तो टोटल हो गई 4 डिजिट्स, राइट। तो 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1.0101। सो दिस वे यू हैव टू सॉल्व this complete 2.1, the multiplication in decimal numbers. Now let's move to the last exercise of chapter 2. So let's see the last exercise now, 2.7 exercise, question number 1. So now the change is, अभी तक हमने multiplication किया था, now we have to do the division in the decimal numbers.
So let's see the first question, first part over here. 0.5 divided by 2. Sorry, 0.4 divided by 2. So 0.4 divided by 2. So what we will do in these type of cases, basically, as I told you, 0.4 ka will remove the decimal. Okay, so when you will remove the decimal of it, you will get 1 and 1 digit after the decimal, that means 10. So this 10 would come in the denominator, right? So 4 would remain in the numerator and denominator would become 20. Now can we convert it into lowest term? Yes, we can convert. 4 ones are 4, 4 5s are 20. So it would be 1 upon 5. Now 1 upon 5 को how we can write in the decimal form basically. See, 1 upon 5 के लिए we have to divide 1 with the number 5. तो 1 तो छोटा है, right? So what we will do, हम 0 decimal लगाकर यहाँ पर जो है एक 0 ऐड कर लेंगे, क्योंकि 1 को हम 1 decimal 0 लिख सकते हैं ना, right? अब 5 2 10 हमारा चला जाएगा. So the answer is 0.2. एक तरीका तो करने का ये है by removing the decimal. दूसरा तरीका देख लेते हैं how we can do these type of questions. तो दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, 0.4 divided by 2. I'm raising this part. I'm telling the another way of doing these type of questions basically. So पहला number जो है remain same divided by 2. First number would remain same. We are converting division into multiplication now. Divide की जगह multiply आ जाएगा. And now the most important part is whatever the number is written after the division symbol. Repeating again, जो भी नंबर डिवाइड साइन के बाद लिखा है, we will do its reciprocal. So reciprocal 2 का क्या हो जाएगा, 1/2. How 1/2? क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 और उसको जब हम उल्टा करेंगे that would be 1/2, right? ये इसका रेसिप्रोकल है. So this way you may do like these type of questions. So divide को will convert into multiply और डिवाइड के बाद वाली टर्म को ही रेसिप्रोकल करना है, पहले वाली को नहीं करना. 1/2. नाउ यू कैन कैंसिल इट आउट इजीली. तो आपको कैंसिल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखो, या तो आप डायरेक्टली इसको 0.4 को कैंसिल कर दो. अगर डेसिमल में कुछ प्रॉब्लम है तो डेसिमल रिमूव कर लेंगे इस तरह से. तब हमारे पास क्या बच गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 और नीचे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 ही रहने देना है. ठीक है, अब 2 से 4 को काट दो. 2 1 2, 2 2 4. तो ये बच गया 2/10 और 2/10 होता है 0.2. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. नीचे एक 0 है तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा. ठीक है, तो 2/10 मैं दोबारा बता देती हूँ. एक 0 है तो ऊपर न्यूमरेटर में एक डिजिट के जस्ट पहले जो है डेसिमल लग जाएगा. अगर 2/100 होता, 2 जीरोस हैं तो एक डिजिट, दूसरी डिजिट और फिर डेसिमल लगाएंगे. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. लेट्स डू वन मोर पार्ट ओवर हियर. So we'll do the second part. 0.35 divided by 5. 0.35 divided by 5. तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट नंबर वुड रिमेन सेम, डिवाइड वुड बिकम मल्टीप्लाई. 5 का रेसिप्रोकल इज 1/5. ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे, इट वुड बी 100. अब 5 और 35 को वी कैन कैंसिल. सो आई एम जस्ट कैंसिलिंग इन द नेक्स्ट लाइन. Okay, 5 ones are 5, 5 sevens are 35. So you are getting here 7/100. अभी बताया मैंने, in the denominator we are having 2 zeros. तो ऊपर 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे. तो एक डिजिट, दूसरी नहीं है तो हम 0 लगा देंगे और उसके बाद डेसिमल. तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.07. We will solve one more part, then you would be able to do rest. So let's see one more part over here. तो चलो we'll see fourth part. ठीक है, so 65 decimal 4 divided by 6. पहला नंबर सेम रहेगा as I told you earlier. Divide would become multiply. 6 का रेसिप्रोकल इज 1/6. अब क्या करना है आपको, we'll remove the decimal. so इस डेसिमल को हटा देंगे, या फिर आप नहीं भी हटाना तो आप इस डेसिमल को ऐसे रहने दो. थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है डेसिमल हटाने में तो इसको भूल जाओ और सिंपली आपको 654 को 6 से डिवाइड करना है. ठीक है, 654 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 0. 54 पूरा नीचे नहीं ला सकते तो 5 आएगा. 5 डिविजिबल नहीं है इसलिए हमें 0 लगाना पड़ेगा सो दैट वी कैन ब्रिंग डाउन 4 एज वेल. 6 9 54. तो जब हमने डिवाइड किया वी आर गेटिंग 109.
हमने जो है इस डेसिमल को भूल गए थे और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, एक, तो पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट दोबारा बता देती हूँ। डिवाइड वुड बिकम मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद जो भी नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल, उसको फिर डिवाइड करना है, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, डिवाइड करके लास्ट में जो आंसर आएगा, डिवाइड वुड बिकम मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद वाला नंबर वुड बिकम रेसिप्रोकल, फिर सिंपली डेसिमल भूल के डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल लगाना है, जितनी भी डेसिमल के बाद डिजिट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक पार्ट और देख लेते हैं इसका। नाउ वी विल सी दिस सेवंथ पार्ट। ठीक है, चलो सेवंथ पार्ट करते हैं। दिस वन 14 डेसिमल 49 डिवाइड वुड बिकम मल्टीप्लाई, 7 का रेसिप्रोकल वुड बी 1/7। अब आपको 14 49 1449 को 7 से डिवाइड करना है। डेसिमल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर डेसिमल हटाने में प्रॉब्लम है तो इस तरह से कर सकते हो। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 2 14, 4 ब्रिंग डाउन, 4 कांट बी डिविजिबल बाय 7, तो नीचे 9 को नीचे लाने के लिए 0 लगाएंगे। नाउ इट इज 49, 7 7 जा 49, so we are getting the answer as 207। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट, तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करना है और उसके बाद डेसिमल लगा देना है। so this is the answer of this sixth part. Let's move to the next question now. In next question number 2, if you will check out, in every number we are dividing by 10, right? So 4.8 divided by 10. So basically what it is, 4.8 divide would become multiply, 10 का reciprocal is 1/10. तो जब नीचे 10 होता है means we are dividing by 10. So what we'll do, we'll shift this decimal towards the left side. ध्यान देना यहाँ पर, अभी तक हम right side कर रहे थे। If we will divide, then it would shift towards the left side. Multiply होता है like this, तो decimal right side shift होता था, but जब divide है तो decimal left side shift हो जाएगा। ठीक है, तो इट वुड बी, या फिर आपको दूसरा तरीका मैं बताऊं अगर इसमें भी कंफ्यूजन है, तो यू कैन डू लाइक दिस, 4.8 डिवाइडेड बाय 10। नाउ here forgot this decimal, it is 48 now, और जब आप 48 को 10 से डिवाइड करेंगे you will get 10 4 40, 8 bring down, डेसिमल लगाएंगे तभी यहाँ पर 0 आएगा, 10 8 80, तो 4.8 आ गया, और ऑलरेडी हमारे पास जो है एक और डेसिमल था, तो ये डेसिमल फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, इसलिए आप जो है बस ये चीज ध्यान रखो, जब हमारा डिवाइड में 10 रहेगा तो 0 कितनी है, 1, तो एक बार डेसिमल जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो एक बार लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर डेसिमल आ गया, पीछे डिजिट रह गई 48। सो दिस इज द आंसर। अभी एक दो पार्ट्स करते हैं, आपको और क्लियर होगा। लेट्स सी दिस पार्ट, 33.1 डिवाइड बाय 10, तो डिवाइड करना है तो डेसिमल को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, कितनी जीरोस है, एक जीरो, तो डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स इट वुड बिकम 3.31, दिस वुड बी द आंसर। वन मोर पार्ट देख लेते हैं, लेट्स सी दिस फिफ्थ पार्ट, 10 है, एक जीरो है, तो डेसिमल को एक बार शिफ्ट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट से, तो 27 डेसिमल 223, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ डेसिमल 272 के बजाय 27 के बाद आ जाएगा, डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना है व्हेन यू विल डिवाइड बाय 10। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन दिस टाइम। So third question is also a similar kind of like question as 2. So what you can see here in the third question, we are dividing by 100, not by 10. We are dividing by 100 in this case now. So same चीज करनी है, divide कर रहे हैं, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, whatever number it is. तो जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल को लेफ्ट साइड ही शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर, किससे डिवाइड कर रहे हैं। 10 में एक जीरो थी तो एक बार शिफ्ट किया था, 100 में 2 जीरो है तो 2 बार शिफ्ट करेंगे, एक बार यहाँ फिर एक बार और, तो इसके लिए हमें एक और डिजिट चाहिए, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, मतलब यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा बेसिकली, और पीछे की डिजिट एक्जेक्टली सेम लिख देनी है। आई एम रिपीटिंग अगेन, करना क्या है इस केस में, 100 है, टू जीरोस, तो 2 डिजिट
शिफ्ट करना है डेसिमल को टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो 2 तो एक डिजिट हो गई, एक डिजिट और चाहिए, 0 ले ली और फिर डेसिमल लग जाएगा, 7 वुड रिमेन सेम हियर। सो दिस वुड बी द आंसर। एक और पार्ट देख लेते हैं, लेट्स सी दिस थर्ड पार्ट हियर। 0.78 डिवाइड बाय 100, 2 zeros हैं, डिवाइड करना है तो 2 बार डेसिमल शिफ्ट होगा, ठीक है। 78 तो एज इट इज आ जाएगा, डेसिमल के बाद जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब इधर शिफ्ट करना है, एक 0 बट एक और 0 चाहिए क्योंकि 2 बार शिफ्ट करना है, एक बार और 2 बार, तो यहाँ पर एक और नंबर चाहिए हमें। सो इट वुड बी decimal 0078. This would be the answer of third question, third part. Now we will see one more here. Fourth part. जल्दी से खुद से करके बताओ what will be the answer of this fourth part here. I think answer आ गया होगा। डेसिमल को कितनी बार शिफ्ट करना है? 2 बार, बिकॉज ऑफ 2 zeros। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो ये आ जाएगा 4.326. This would be the answer. Okay, let's see the fourth question this time. Fourth question भी same kind है। 100 की जगह 1000 आ गया, मतलब डेसिमल को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड 3 बार, ठीक है, 3 डिजिट होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट देखो, 7.9 डिवाइडेड बाय 1000, 7.9 डिवाइडेड बाय 1000, 3 0 है, 3 बार शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, तो एक बार जब शिफ्ट किया तो यहाँ आ गया, दूसरी बार के लिए 0 चाहिए, फिर 0 को यहाँ कर दिया, तीसरी बार के लिए फिर 0 चाहिए, फिर यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स डेसिमल 0079 वुड बी द आंसर ऑफ इट। तो डेसिमल के पहले 3 डिजिट होनी चाहिए 1000 के केस में, नहीं है तो अपने आप से जीरोस लगा लेना है एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी दिस थर्ड पार्ट नाउ। 3 0 है, 3 बार शिफ्ट होगा, 1 2, तीसरी डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे, तो 03853 और सबसे आगे लग जाएगा डेसिमल। लेट्स सी वन मोर, फिफ्थ पार्ट देखो, 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, 3 डिजिट चाहिए टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एक डिजिट, दूसरी, तीसरी, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल 1 2 3 3 zeros and 5. This would be the answer. So I hope this is clear how to divide by 10, 100, 1000. जो भी जितनी भी zeros हैं उतनी बार towards the left side decimal को shift कर देना है. If that many digits are not present, you may take 0 over there. Now let's move to the fifth question now. In fifth question, you may check here, find, we have to divide again, but now here we have to divide with a decimal number. Okay, 7 divided by 3.5, 3.5. So I just told that we can convert this division sign into multiplication. So करके देख लेते हैं what we would get here basically. So this would become, अच्छा पहले हम जो है ना decimal remove कर लेते हैं. So how we can write 3.5 basically? This would be 35 upon 10. How? Because when we will remove the decimal, 1 digit is there after the decimal, तो 10 आ जाएगा. अब हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, सो डिवाइड वुड बिकम मल्टीप्लाई और उसके बाद वाला जो नंबर है दैट वुड बिकम रेसिप्रोकल. तो 35/10 बन जाएगा 10/35, करेक्ट? ओके, नाउ कैन वी कैंसल, can we cancel? Yes, 7 1s are 7, 7 5s are 35, right? So we are left with 10/5. I'm writing towards this side, 10/5. Again we can cancel it further, 5 1s are 5, 5 2s are 10. So the answer would be 2. Repeating again, what we have to do in this case, remove the decimal first of all. Now convert this division into multiplication. So I just told you a few minutes ago, when we convert division into multiplication, we do the reciprocal of the next number, whatever is written just after the decimal. So 7 would remain same, division would become multiplication, and the number which is written just after it would become reciprocal. So reciprocal of 35/10 would be 10/35. Now we can cancel both, and then if we can cancel further, we will cancel it, and that would be the answer. So answer of this first part would be 2. Now let's see one more here. So we will see third part now. Okay, 3.25 divided by 0.5. So first we will remove the decimal of both. Two numbers are in decimal, so दोनों का decimal remove कर लेते हैं. So when we will remove this decimal,
तो 325 अपॉन 100 आएगा बिकॉज 2 डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल. Divide exactly same. So when we remove this decimal, so it would become 5 upon 10 क्योंकि 5 as it is और एक डिजिट है तो 10 आ जाएगा. Now what would be our next step? पहला नंबर सेम रहेगा. 325 upon 100 would remain same. Divide would become multiply और इसका कर देंगे reciprocal. So reciprocal of 5 upon 10 is 10 upon 5. Now just check out, can we cancel something? Yes, 0 0 cancel out और 325 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं. अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना आता आप इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं. 5 6 30, 2 रिमाइंडर, 5 ब्रिंग डाउन, 5 5 25. तो 65 इज द क्वेश्चन विद रिमाइंडर 0. सो 65 आ गया जब आप इसको कैंसिल करेंगे. इसको 5 1 और 5 65 सा. तो अब हमारे पास क्या बच गया? 65 अपॉन 10. और ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, राइट? तो नीचे 10 है तो डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, बट 65 में कोई भी डेसिमल नहीं है तो पीछे से डिजिट देखेंगे उतनी और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे. तो एक 0 है तो पीछे से एक डिजिट देखेंगे और उसके बाद डेसिमल लग जाएगा. तो एक डिजिट 5 देखा उसके बाद डेसिमल लग गया. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस थर्ड पार्ट. आई होप समझ आ गया होगा. इफ स्टिल यू आर हैविंग डाउट्स यू मे राइट इन द कमेंट बॉक्स और ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चंस, देन ओनली यू वुड बी एबल टू सॉल्व. सो लेट्स स्विच टू one more part over here. So now I'm going to solve this fifth part. Okay, we'll see fifth part now. So in fifth part, they are giving 0.5 divided by 0.25. So let's write it. 0.5 divided by 0.25. So decimal remove करना है. Okay. So when we'll remove the decimal of it, 5 by 10 divide exactly same. इसका decimal remove करेंगे 25 by 100. अब मैं डेसिमल रिमूव कैसे करना है वो बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, दोनों वेरी वेल. डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो पहला नंबर एक जैसा मल्टीप्लाई और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल. अब हमें कट करना है तो 1 0 से 1 0 कट गई. 5 1 5, 5 5 25. क्या बच गया? ऊपर बच गया 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5. फिर फर्दर कट सकता है. यस. तो द आंसर वुड बी 2. आंसर ऑफ दिस फिफ्थ पार्ट इज 2. One last part I'll discuss of this fifth question. So I'll just discuss this now. Okay. So let's see this. 37 decimal 8 divided by 1.4. Remove the decimal. 378 divided by 10. Remove the decimal here as well. Now convert this division into multiplication. First number same. Next would be reciprocal. Cancel out. 10 से 10 cancel. 14 से क्या ये कट रहा है? Let's see. 14 से डिवाइड करके देख लेते हैं 378 को. नहीं तो आप 2 से भी काट सकते हैं पहले, लाइक 2 7 सा 14 और इसको 2 से काट के देख लो, ऐसे भी कर सकते हो. अदरवाइज आप 14 से पहले चेक कर लो पूरा पूरा कट रहा है तो हम एक बार में काट देंगे, नहीं तो आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं. सो 14 के टेबल अगर आप चेक करेंगे 14 2 सा 28, 14 3 सा 42. ये बड़ा हो गया तो विल टेक 2 सा. माइनस करेंगे इसको, ब्रिंग डाउन. अब 14 के टेबल फिर से चेक कर लेते हैं किस पे आएगा. 98 आ सकता है या नहीं आ सकता, तो देखते हैं आ सकता है या नहीं आ सकता. तो 14 7 सा करके देखते हैं. आ गया, राइट? तो 14 7 सा 98. इसका मतलब ये नंबर पूरा पूरा डिविजिबल है 14 से किस पे? 27 पे. तो 14 1 सा 14, 14 से 27 सा 378. तो आंसर ऑफ दिस वुड बी 27. तो इसका आंसर आ गया 27. तो आई होप समझ आ गया होगा हाउ टू सॉल्व, हाउ टू डिवाइड द डेसिमल नंबर्स. इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट, आई विल जस्ट डिस्कस इट. Let's see the last question of this chapter 2 now, and then our chapter would complete. So question number 6 is a vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 liters of petrol. Means एक व्हीकल है जो कि इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल से. तो व्हीकल ने डिस्टेंस कवर किया 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में. इतना पूछा क्या है? हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. एक एग्जांपल आपको देती हूँ. सपोज 2 लीटर पेट्रोल से, आपकी कार में 2 लीटर पेट्रोल है, उससे आप 10 किलोमीटर कवर कर पा रहे हैं. ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे? 2 लीटर में 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं तो 1 लीटर में कितना कवर करेंगे?
5 किलोमीटर, राइट। कैसे निकाला ये 5? 10 और 2 को डिवाइड करके। तो जब भी आपको 1 के बारे में पूछा जा रहा है तो यू विल डिवाइड इन दैट केस। ये ध्यान रखना, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर में कितना कवर करेगा, तो उस केस में आपको डिवाइड करना है जब भी 1 का पूछा जाएगा। So how you are going to write this question now? So what you are going to write? Distance covered, covered लिखना है, covers नहीं लिखना, distance covered by vehicle in 2.4 liters of petrol. Repeating again, distance covered by vehicle in 2.4 liters of petrol equals to this distance, 43.2 किलोमीटर। अगेन द सेम लाइन, 2.4 लीटर्स की बजाय 1 लीटर आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल्स टू 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4। ठीक है, दिस वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब सॉल्व करना तो आपको आता ही है, मैंने सारे बताए हैं, स्टिल एक बार इसको देख लेते हैं। 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4, दोनों का डेसिमल रिमूव कर देना है पहले, सो इट वुड बी 432 डिवाइडेड बाय 10, दिस वुड बी 24 डिवाइडेड बाय 10। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देंगे, सो दिस वुड रिमेन सेम, डिवाइड वुड बिकम मल्टीप्लाई, दिस वुड बिकम रेसिप्रोकल। काट देते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, 432 को 24 से डिवाइड करके देख लेना है, कैन बी डिवाइडेड और नॉट। 24 1 जा 24, 2 जा करोगे तो बड़ा आ जाएगा 48, तो इसको माइनस करेंगे 19 आएगा, ब्रिंग डाउन किया। अब 24 8 सा चेक करके देखो, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, तो 192। तो 18 पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 24 1 सा 24 18 सा, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 18। तो कितना डिस्टेंस? 18 किलोमीटर। ठीक है, यूनिट जरूर लिखना है। सो दिस इज अबाउट चैप्टर 2। If still you are having doubts, please ask by writing in the comment box. If you want the exercises 2.1, like the previous exercises which are not discussed in this video, you can see the links I have provided in the description box. So maintain the notebook properly. This is about today's video. Have a nice day. Bye bye. Do like, share and subscribe.